Hello guys, welcome to MBA Pathshala. So guys, today the session is a strategy one and this is a session on verbal game plan. So guys, जैसा कि हम सब रियलाइज करते हैं कि अब बहुत लिमिटेड टाइम बचा है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड हाउ यू हैव टू स्टडी. Okay, so in that context we will be discussing certain things in today's session. So guys, this is going to be a broad session that will give you some very important aspects as to how you have to plan your studies, right? So start करने से पहले guys, so this is the booster course that we are coming up with. So guys, I'm going to explain this course in a much detailed manner at the end, ठीक है? But अभी के लिए you can understand that this course has almost everything that you need for your CAT verbal preparation. Okay, so basically यहाँ पे क्या है, आपको 1000+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं VRC के, ठीक है? जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड पे जाते ही आपको 70 वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा. These 70 videos will feature 350+ CAT quality RC questions. Enough RCs for you to practice till the end. उसके साथ साथ आपके बहुत सारे RCs डिस्कस होंगे 40 लाइव सेशंस में. Okay, so you can just imagine the number of RCs would be around 100 to 120. Then you have access to VA questions. वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? पास्ट ईयर के कैट पेपर के क्वेश्चंस एंड देन you have topic tests also. And the great thing about this course is that it's going to cost you 4500, so you can use this code booster. Okay, once you use this code booster, you get a direct 20% discount. Okay, so that comes around 950 rupees ka discount. Okay, so that is something that you can look at. Okay, so अगर आप VRC preparation कर रहे हो तो आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो. एंड यस, वी हैव दिस कंप्लीट बैच. ओके, सो दैट इज 12,000 rupees for the complete batch. Okay, so guys, before like I start, let me make this very clear. When it comes to the verbal section, generally मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि हम लोग ना काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी को लेके सोच विचार करते हैं. हम सोचते हैं कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है स्ट्रैटेजी में, कुछ ऐसा कुछ गलती कर दी है ना. सी, द स्ट्रैटेजी फॉर वर्बल इज प्रीटी सिंपल. द रीजन बीइंग दैट वर्बल में सिलेबस ही बहुत सिंपल सा है, ठीक है? सो कैट ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि भाई, एज एन एग्जाम वी विल गिव 16 क्वेश्चंस ऑन आरसी, okay, and 8 questions of verbal ability. Within verbal ability there are only 4 question types. Okay, you have parajumbles, you have odd one out, you have paragraph completion and you have para summary. Okay, अब all in all यही question types है. So the point that I'm trying to make is it's not very complex. Okay, what is more important is the content that you have chosen, and also what is more important is the fact that whether or not you're consistent in following whatever you have decided. बड़े बड़े टारगेट्स बनाने का मतलब नहीं है मैं बहुत बड़ा टारगेट सेट कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरी इस चीज को अचीव करने की कैपेसिटी नहीं है, सो ऑब्वियसली आई वुड फील डीमोटिवेटेड, राइट? ओके, सो आज हम लोग वही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करेंगे, ठीक है? कि एग्जैक्टली अपनी प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए, ठीक है? ओके, so let me start with the very first thing. Prioritize accuracy over speed and analysis over the number of questions. Okay, so let me explain this point. See, क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? स्पीड करें, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी प्रायोरिटाइज करें. सबसे पहली चीज, स्पीड आप आर्टिफिशियली बढ़ा ही नहीं सकते. अगर आपकी स्पीड ये है कि आप वर्बल में 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो तो 12 क्वेश्चंस ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे. योर स्पीड गोज अप ओनली व्हेन योर माइंड बिकम्स accustomed to the difficulty of the question and it knows and it realizes that there is sufficient accuracy. Now I can ramp it up and now I can increase speed. To give you an analogy, ठीक है, इमेजिन करो जैसे हम लोग कार ड्राइव करते हैं. अब जब अपन कार ड्राइव करते हैं, ठीक है, सो व्हेन यू लर्न ड्राइविंग अ कार और फॉर दैट मैटर इवन अ टू व्हीलर, in the start you're very cautious and you drive very slowly. Why? Because you know that if you drive too fast you can make a mistake. Okay, you can end up having an accident. Lekin once you become comfortable, then you increase your speed, right? That is the same thing that happens with your verbal section. Okay, कई लोगों का ये क्वेश्चन जो होता है ना कि एक्यूरेसी सर, एक्यूरेसी देखें, स्पीड देखें सर, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें? भाई, आप कंफर्टेबली जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना, ठीक है, आप उतने ही अटेम्प्ट कर सकते हो. उसके बाद बस जो क्वेश्चन का थोड़ा बहुत नंबर इंक्रीज होता है वो इस वजह से होता है बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस वेर यू वेस्टेड टाइम.
वो वेस्टेड टाइम को हटा दो, ठीक है, वहां से आपके 2-3 क्वेश्चंस इंप्रूव कर सकते हो आप, बट यू कैन नॉट इंक्रीज योर स्पीड मैसिवली. सो व्हेन वुड द स्पीड इंक्रीज? व्हेन यू हैव एनफ प्रैक्टिस एंड योर माइंड विल अलाउ यू टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अटेम्प्ट. ठीक है, तो ये words per minute and all those things, okay, they don't really matter as long as you know that, okay, this is my comfort level and this is the number of questions that I can easily attempt. Okay, analysis over the number of questions. 2 RC करें, 3 RC करें पर डे, 4 RC करें, ठीक है, कितने मॉक टेस्ट करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यार मैंने जो क्वेश्चन किया उसको मैं एनालाइज कर पा रहा हूं क्या. What is your value addition from a question? आज अगर सपोज करो कि मैंने एक मॉक सॉल्व किया, to solve a mock I take around 40 minutes, right? ठीक है. Okay, so that's the allowed time for the verbal section. Okay, so let me make it clear. Verbal section का मैंने mock किया है ना, sectional मैंने दिया, verbal section को मैंने 40 minutes में attempt किया. How much time do you think you need to analyze these 24 questions that you have on the verbal mock? Okay, आपको एटलीस्ट चाहिए यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 hours, राइट. हम क्या करते हैं, टारगेट किस हिसाब से, यार कितने क्वेश्चंस किए मैंने, ठीक है, मैंने एक मॉक लगा दिया, भाई आप उस मॉक को एनालाइज कर पाए क्या, ठीक है, आस्क योरसेल्फ, बिकॉज योर लर्निंग विल कम फ्रॉम द एनालिसिस. क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या मैं रीजन समझ पाया, क्या रीजन समझने के बाद अब मैं नेक्स्ट टाइम कर सकता हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज एनालिसिस ओवर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग, राइट. नाउ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस व्हेन यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, आज आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट से एज इन लाइक you have been studying but now you are really on the last leg of CAT. Now you have to answer these questions. Okay, so let me take you through these questions one by one और आप अपने आप से पूछना कि यार ये questions क्या मैं आंसर कर पा रहा हूं. सबसे पहली चीज, do I realize the level of CAT? ठीक है, CAT का क्या मुझे लेवल का एनालिसिस है, ठीक है, मुझे क्या आइडिया है कि CAT में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. देखो यार, अगर आपको पैसेजेस के लेवल का पता नहीं है तो आप कैट के लिए जो कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट 2.5 मंथ्स तक जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो आप कहीं से पिक तो करोगे ना, ठीक है. आप कैसे पिक कर पाओगे अगर आपको कैट के लेवल का ही पता नहीं है. सर कैट का लेवल कैसे पता चलेगा, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं. यू कैन गो थ्रू द वर्बल लिस्ट दैट वी हैव ऑन आवर चैनल. ओके, ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड आर ईदर एक्चुअल कैट और ऑफ कैट लेवल, ठीक है, आपको पता चल जाएगा. इतना ही सिंपल आंसर है. ओके, तो आज प्लेलिस्ट आप जाके चेक करना. ओके, द प्लेलिस्ट हैज 40 वीडियोस. ओके, सो यू हैव वीडियोस ऑफ एक्चुअल कैट passages, you have videos of cat para summary, para completion, ठीक है, सबका लेवल आपको पता चल जाएगा, वही कैट का लेवल है, ठीक है. तो अगर आप बिगनर हो तो भाई आप सबसे पहले जाके चेक करें कि एग्जैक्टली कैट है क्या, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा. हाउ मच टाइम कैन आई रियलिस्टिकली गिव ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है. देखो, जो भी आपका टाइम टेबल आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी आपका टारगेट आप सेट कर रहे हो, इस चीज को ध्यान रखो कि मेरे को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर जो 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 डिवीजन है उसके हिसाब से मैं इंग्लिश में कितना टाइम दे सकता हूं. कैन आई गिव 2 आवर्स डेली, कैन आई गिव 3 आवर्स डेली, कैन आई गिव 4 आवर्स डेली. ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई एम रेडी टू गिव रियलिस्टिकली स्पीकिंग. बिकॉज जो भी आपका टारगेट सेट होगा ना, मैं टारगेट्स की बात करूंगा, ठीक है, जो भी आपका टारगेट सेट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच टाइम एम आई एबल टू मैनेज फॉर वर्बल सेक्शन. ओके, एनीवेयर बिटवीन 2 आवर्स टू 4 आवर्स. रियलिस्टिकली आप तभी अपना टारगेट सेट कर पाओगे. आप दुनिया भर के टाइम टेबल बनाते हो, दुनिया भर के टारगेट्स निकालते हो, लेकिन आपको रियलिस्टिकली नहीं पता कि कितना टाइम मैं दे सकता हूं ऑन अ डेली बेसिस. ओके, इट डज नॉट रियली मेक मच डिफरेंस, राइट. प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है. देखो, हम लोग हैं इमोशनल बाय नेचर, राइट. ह्यूमंस होते ही इमोशनल, है ना. तो हमारे साथ क्या होता है कि जैसे ना मैंने आज आपको कहा कि यार आपको ना डेली 2 आरसीज टू 3 आरसीज करने हैं और डेली नहीं, वीकली आपको 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं. आपने सेक्शनल टेस्ट दिया, वहां पे जाके एनालिसिस देखा, मार्क्स देके आपको रियलाइज हुआ कि यार पूरे इस सेक्शनल टेस्ट के अंदर तो मेरा लेट्स से 6 क्वेश्चन ही सही हुआ है, ठीक है. 10 क्वेश्चन मैंने टोटल किए, 4 गलत हो गए, 6 ही सही हुए. ओके, यार ये तो बड़ा गंदा स्कोर आ गया, मूड खराब हो गया. अब मूड खराब हो गया तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि यार ऐसा तो नहीं कि मैंने क्या कहते हैं कैट सिलेक्ट करके ही गलती कर दी, ठीक है, यार वो दूसरा इंसान मेरे से ज्यादा बेटर कैसे परफॉर्म कर रहा है. भाई इतना नहीं सोचना है, ठीक है, ये सोचना है तब जब कैट का पेपर हो जाएगा. प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच,
इट डज नॉट मैटर। आपने सेक्शनल देना है, खत्म बात, ठीक है। उसका एनालिसिस करना है, खत्म बात। इट डज नॉट मैटर हाउ मच मार्क्स यू गेट, एनालिसिस मैटर करता है, ठीक है। एनालिसिस के अंदर भी टारगेट्स रखो कि यार सारे क्वेश्चन एनालाइज नहीं करूंगा, मुझे हर सेक्शन मतलब वर्बल की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे अराउंड 15-16 क्वेश्चंस ऐसे मिलने चाहिए जो मैं इजीली कर पाऊं एनालिसिस के टाइम पे। उतना मेरे को क्वेश्चन मिल रहा है, आई एम हैप्पी, राइट। सो डोंट गेट इमोशनल, कीप ऑन अचीविंग द टारगेट्स। मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए, इट डज नॉट मैटर। मेरा टारगेट पूरा हो गया ना, 2 सेक्शंस मैंने डिसाइड किए थे, एम आई डन विद दैट टारगेट फॉर वीकली बेसिस? यस, दैट इज द अप्रोच, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। ज्यादा इमोशनल हो गए आपको दिक्कत होगी, ठीक है। एज पर अवेलेबल टाइम, व्हाट इज द बेयर मिनिमम वीकली टारगेट गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का ना मोटिवेशन खत्म होता है, इसलिए खत्म होता है क्योंकि टारगेट सेट कर लेते हैं बड़े बड़े, टाइम देखते नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कितना टाइम मैं दे सकता हूं। क्वांट का कितना टाइम देना है, वर्बल का कितना टाइम देना है, कैलकुलेशन करो, ठीक है। उसके हिसाब से बेयर मिनिमम टारगेट सेट करो। बेयर मिनिमम का मतलब ये हुआ इतना तो अचीव करना ही है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, ओके। एंड दिस बेयर मिनिमम टारगेट would be the sort of target that you can easily achieve. Why? Because अगर आपका वर्स्ट के सिनेरियो भी होता है तो आप वीकली बेसिस पे एटलीस्ट वो टारगेट टच कर पा रहे हो, यू वुड ऑलवेज फील मोटिवेटेड। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज नो लिमिट टू हाउ हाई यू कैन गो, राइट। ज्यादा भी कर सकते हो आप, बट कीप दैट बेयर मिनिमम टारगेट इन माइंड। डू आई नो विच कंटेंट टू फॉलो गाइस? ये जो डिसीजन है ना, ये आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर लेना है कि एग्जैक्टली मैं क्या कंटेंट फॉलो करने वाला हूं। मुझे नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में कुछ पैसेजेस करने हैं, कुछ मॉक्स करने हैं, लेकिन वो कौन से मॉक्स है, ठीक है, कहां से कौन से पैसेजेस मैं पिक करूंगा, कौन सी किताब मैं खरीदूंगा, ठीक है, कौन सा कंटेंट मैं फॉलो कर रहा हूं। रैंडम कंटेंट फॉलो करोगे हर बार कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज कहीं पे एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एंड देन यू वुड ऑल बी फ्लैबरगैस्टेड, राइट। ओके, सो बी वेरी वेरी क्लियर एग्जैक्टली विच कंटेंट डू यू वांट टू पिक, ओके। Now, simple weekly targets, guys. Why have I said simple weekly target? Because this is how your timetable should look like. वर्बल सेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो इसलिए क्योंकि वर्बल सेक्शन देखा जाए तो ये मैथ्स या एलआर की तरह नहीं है, ओके। वी हैव वेरी लिमिटेड टॉपिक्स एंड इट डज नॉट मैटर किस टॉपिक को पहले करते हो, किसको बाद में करते हो। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट यू शुड हैव एनफ practice, your mind should be prepared, okay, that is what is more important, right? So I'm going to talk about the weekly targets as in like the proper timetable in some other session, but abhi ke liye na main aapko bata raha hu, itna aap एक बेयर मिनिमम टारगेट अपना लेके चलो, पर वीक के बेसिस पे आप इतना कर पा रहे हो क्या, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस आरसीज, ओके। हर वीक यू हैव टू डू अराउंड 10 to 15 आरसीज। 10 to 15 मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज बेयर मिनिमम 10 करने हैं, मैक्सिमम 15 करने हैं, ठीक है। एंड दैट शुड गो विद एनालिसिस। there could be a student who would say कि सर मैं तो 25 कर लेता हूँ, ठीक है भाई, आप कर लेते हो बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं कि 25 पैसेजेस जो आप कर रहे हो वो इतने इजी हैं कि वो कैट के लेवल के नहीं है। आस्क योरसेल्फ, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ओके, हैव यू रियली सीन द कैट लेवल? क्योंकि ये जो 10-15 पैसेजेस की मैं बात कर रहा हूँ ये कैट लेवल पैसेजेस है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्बल एबिलिटी 30 to 50 क्वेश्चन गाइस, 30 से लेके 50 क्वेश्चन, इजिली अचीवेबल टारगेट। ज्यादा टाइम नहीं मिला, 30 क्वेश्चंस कर लिए। काफी अच्छा टाइम मिला, ठीक है, मैथ्स का लोड कम था, 50 क्वेश्चंस कर लिए। 30 to 50 क्वेश्चंस, परफेक्ट टारगेट। 2 to 3 सेक्शनल्स विद एनालिसिस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 2 to 3 सेक्शंस? देखो, आप जो मॉक देते हो, ठीक है, तो आपने जैसे फुल लेंथ मॉक दिया, तो उस फुल लेंथ मॉक के अंदर भी वर्बल का सेक्शन है, तो मैं उसको भी सेक्शनल काउंट कर रहा हूं। सो लेट अस से यू गेव 1 मॉक, ओके, सो वर्बल सेक्शन आ गया, तो एक सेक्शनल आपको वहां से मिल गया, ठीक है, और आपने 2 सेक्शनल टेस्ट अलग से 40 मिनट्स के फ्रेम में वर्बल के दे दिए, तो नाउ दिस इज 3 सेक्शनल्स, ओके। सो इवन मॉक विल काउंट। सो मॉक प्लस योर सेक्शनल टेस्ट दोनों मिला के आपको 2 to 3 सेक्शनल्स करने हैं विद एनालिसिस। एनालिसिस में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं गाइस, क्योंकि यार एनालिसिस इसलिए जरूरी है, जो तुमने वहां गड़बड़ की है ना, वो तुम तभी पता लगा पाओगे जब तुम एनालाइज करोगे, ठीक है। एंड आई विल टॉक अबाउट द एनालिसिस पार्ट ऑल्सो, ओके, बट देन दिस एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आरसी जॉनरास। व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, रोज का आप 3 आरसी कर रहे हो, रोज का एवरी वीक आप 2 से 3 सेक्शंस कर रहे हो, आपके माइंड में ना
एक पिक्चर बननी चाहिए कि एग्जैक्टली मेरे कौन कौन से स्ट्रेंथ्स हैं जो आरसी में मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं, ठीक है. I have identified that natural science is something that I'm really good at. I have identified that I'm very good in sociology. Okay, economics के पैसेज बड़े यार इजीली समझ में आ रहे हैं, ठीक है. ये बैकग्राउंड आपके माइंड में बन रहा है, क्वेश्चन टाइप्स आप देख रहे हो, राइट. एनी 1 ईयर पास्ट ईयर पेपर विद एनालिसिस, हर हफ्ते एक पास्ट ईयर का पेपर उठा लो, उसके जितने भी स्लॉट्स थे वो सारे स्लॉट सॉल्व कर लो और उनका एनालिसिस रीड कर लो या तो वीडियो देख लो. ओके, 1 ईयर कैट पेपर, any 1 year you can select and you have to analyze the verbal section of that year, right. This is a sample weekly target, perfect target है, ठीक है. इसको आप एक बार स्टडी कर लेना. I will be coming up with a session where we will talk about per week target for monthly basis also. So like मेरा exactly कौन से वीक में क्या टारगेट रहेगा, लेकिन अभी के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो this is how you can start. Okay, now कंटेंट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी गाइस. वीकली टारगेट सेट हो गया, ठीक है. मुझे पता है कि 15 आरसी करने हैं इस वीक में, ये करना है 30 क्वेश्चंस टू 50 क्वेश्चंस वीए के करने हैं, बहुत बढ़िया. अब सवाल आता है कि भाई कंटेंट कहां से आएगा. ओके, सो कंटेंट सिलेक्शन गाइस इज समथिंग दैट यू हैव टू रियली थिंक अबाउट. व्हाई? बिकॉज देखो यार, हम लोग स्ट्रैटेजी की इतनी बात करते हैं, मुझे एक चीज बताओ, आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो, क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे आप कि यार सर वर्बल एबिलिटी पहले करते हैं, आरसी पहले करते हैं, आरसी पहले करते हैं, वर्बल एबिलिटी बाद में करते हैं, ठीक है. बस इसी में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, 2 आरसी कर सकते हो, वहां से 6 क्वेश्चन वीए के कर सकते हो, वहां 3 आरसी कर सकते हो, वहां 4 क्वेश्चन वीए के कर सकते हो, ठीक है. बस उतना ही शिफ्टिंग होगा ना. The problem is that these things will depend on the paper, and to some extent how you select the passage or how you select verbal ability questions will also depend on your overall level of like intelligence and your ability to discreetly identify which questions is easy and which questions is tough. और उसके लिए जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि भाई मैंने क्या पढ़ा, मैंने जो प्रैक्टिस की उस प्रैक्टिस की इंटेंसिटी क्या थी, ओके, उसका वैल्यू ऐड क्या था, राइट. ओके, सो व्हाट इज कंटेंट गाइस. देखो, आरसी सोर्स एक आप सेलेक्ट करो. आरसी सोर्स का मतलब ये हुआ, अपने माइंड में ये प्लान बनाओ कि भाई ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स जो मेरे आने वाले हैं, 2.5 मंथ्स, उसमें मैं 100 आरसी कहां से लूंगा. आपने कहा कि सर मैं सो एंड सो सोर्स से लूंगा, ठीक है. मैंने सोर्स को डिसाइड किया. इज दिस सोर्स गोना हैव द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, आपने आरसी सॉल्व किया, आपको समझ में नहीं आएगा, यार आरसी में आंसर गलत हो गया, ठीक है, मार्क्स नहीं आए, तो केवल आंसर देखता हूं, यार तो आंसर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है. चेक करो, जो भी कंटेंट आप ले रहे हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आपकी कोचिंग का है, चाहे आपने कोई ऑनलाइन कंटेंट लिया है या कोई फिजिकल बुक ली है, आप एक बार देखो उसका एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है क्या. अगर वो एनालिसिस समझ में नहीं आया तो फिर फंस जाओगे, फिर टाइम वेस्ट करोगे आप, है ना. तो सेलेक्ट 100 आरसीज. ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में सेलेक्ट कर लो, एक माइंडसेट बनाओ कि यार ये सोर्सेज है जहां पे से मैं ये 100 आरसीज पिक कर सकता हूँ, बड़े अच्छे सोर्स है, ठीक है. और इसमें पीछे एक अच्छा सा एनालिसिस भी है, वीडियो सॉल्यूशन हो सकता है, रिटन सॉल्यूशन हो सकता है, बट मुझे समझ में आता है. ओके, प्लान्ड, राइट. वी क्वेश्चंस देखो, ठीक है. What are the sources from where I'm going to pick up the VA questions? 350 to 500 questions. Every VA question should come with explanation. ठीक है, explanation नहीं है तो तुम्हें लॉजिक समझ में नहीं आएगा. ओके, ये तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 1 वीक कि ये जो मेरा प्लान है उसमें जो मैं हर हफ्ते जो 30 to 50 VA के क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं, वो कहां से आएंगे, वो कौन सी बुक्स हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं, क्या उन सोर्सेज में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है. वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. मॉक्स एंड सेक्शनल्स, अगर आप हर हफ्ते 2 to 3 मॉक्स स्लैश सेक्शंस दे रहे हो, तो वो मॉक और सेक्शनल्स कौन से हैं. 15 to 20 मॉक्स स्लैश सेक्शनल्स का आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, या जो भी आपने डिसाइड किया है अपने हिसाब से, ठीक है. और जो भी मॉक्स आप ले रहे हो, जो भी सेक्शंस आप ले रहे हो, उसके अंदर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होगा आपका वो ये होगा कि मैंने मॉक को सॉल्व कर लिया, लेकिन अब इसका मुझे एनालिसिस चाहिए, इसका मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन जो पीछे समझाई हुई चीजें वो मुझे समझ में नहीं आ रही. और वो समझ में नहीं आ रही तो उसका मतलब ऑब्वियसली देन यू हैव टू रियली डिसाइड दैट डू आई हैव एन ऑल्टरनेट सोर्स, राइट. ओके, पास्ट ईयर पेपर्स विद एनालिसिस, ये चीज इजी है. पास्ट ईयर पेपर्स काफी ज्यादा अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, हर पब्लिकेशन की किताब आती है और पीछे एक बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन होता है, तो आई थिंक दिस इज नॉट द टफ पार्ट. ओके,
देन एमबीए पाठशाला वर्बल प्लेलिस्ट, आप में से जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, या मैं कहूंगा कि द सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर नॉट रेडी or who are not that prepared to actually invest money or even go and purchase books, और आपको एक अभी आइडिया बनाना है कि एग्जैक्टली भाई ये कैट का लेवल है क्या, ये पैटर्न चल क्या रहा है, तो आप एक बहुत सिंपल सी चीज कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। आप हमारे YouTube के चैनल पे जाके, YouTube के चैनल में आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पे मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वेयर देयर आर 40 वीडियोस, राइट। उन वीडियोस को ना वन बाय वन आप गो थ्रू करना स्टार्ट करो। Okay, one by one, right? Okay, you will find passages, you will find para summary, you will find para completion, and you will get some sense of how the preparation has to be done on a very like very normal level. If you see, this playlist has enough content to give you full idea of what CAT is all about. Okay, it will give you like all sort of information that you need in order to start your CAT preparation, right? तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे, है ना। तो और वैसे भी otherwise, even if you're an experienced person, okay, go check out these videos. You will realize that a lot of these videos are actually very high quality, in fact challenging, right? तो आप वो देख सकते हो, ठीक है, फ्री कंटेंट है, यू कैन ट्राई दैट। ओके, नाउ हाउ टू एनालाइज मॉक्स। भाई जहां देखो मॉक्स करने हैं, सेक्शनल्स लगाने, एक नंबर मिल जाता है। कहीं से मैंने प्लानिंग की और मेरे को टाइम टेबल बनाना है, ओके, कितने करने हैं भाई, 2 to 3 सेक्शनल स्लैश मॉक करने हैं। कई जगहों पे तो ऐसा भी है कि भाई हर डे एक मॉक करना है। भाई रुको एक बार, मॉक्स कर रहे हो, सेक्शनल्स कर रहे हो, क्या सिर्फ करना ही है, उसको एनालाइज भी करना है? ओके, ऑब्वियसली द एनालिसिस पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? दैट इज व्हाई आई सेड 2/3। तुम्हें लगता है कि अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तुम 2 सेक्शनल्स कर लो, एक मॉक कर लो, एक सेक्शनल टेस्ट दे लो, कोई दिक्कत नहीं, हर हफ्ते का, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ा टारगेट सेट मत करो, ये देखो कि यार मैं उसको अचीव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। ओके, सो हाउ टू एनालाइज मॉक्स? very clearly, these are some of the things that you have to keep in mind. Don't understand the logic of every question. What do I mean by this, guys? एक बहुत बड़ी टेंशन ये होती है हमें वर्बल के अंदर, 24 क्वेश्चंस हैं, सर ये सारे क्वेश्चन समझने आने चाहिए क्या? नहीं भाई, सारे क्वेश्चन समझने नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 के 24 क्वेश्चंस तो तुम एक्चुअल एग्जाम में भी नहीं कर पाते। तुम्हें अगर एक्चुअल एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो तुम रियल एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करते हैं आप, है ना? आप करते हैं 16 to 18 क्वेश्चंस। इवन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 99.5 प्लस टारगेट कर रहा है, तो भी भाई आप 16 to 18 क्वेश्चंस ही टारगेट कर रहे हो ना। तो मेरा ये कहना है कि इस स्टेज पे जहां पे हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वी हैव वेरी वेरी लिमिटेड टाइम, गाइज। आप ये देखो कि उस मॉक में आपको 16 to 18 क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड 16 to 18 क्वेश्चंस? आ गए समझ में? 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में कर दो। उन 16 to 18 क्वेश्चंस का अगर मॉक के पीछे एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, you have done your job, move on to the next analysis, move on to the next target. Okay, you are done, right? Okay, that is what you have to do. Identify questions that were doable and you missed. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यार, हम एज अ पर्सन ना, हमें पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। हम लोग बात करते हैं जॉनरास की, ठीक है, आपने मेरे पुराने सेशंस में भी देखा होगा कि मैं बात करता हूँ कि कुछ इजी एरियाज होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, नेचुरल साइंसेज है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बिजनेस है, ठीक है, मैनेजमेंट है। दीज आर द सॉर्ट ऑफ एरियाज दैट यू कैन रिलेट। और बहुत बार क्या होगा ना कि हम लोग जब सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन में ना हमसे गड़बड़ हो जाती है। पैसेज देखा मैंने, लेकिन शायद मैंने उसको किया नहीं, ठीक है, या मैंने उस सिलेक्शन में कुछ ऐसा पैसेज पिक कर लिया कि वो मुझे नहीं पिक करना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको अपने आप से पूछना है जब आप एनालाइज कर रहे हो मॉक को कि when I went through these 4 passages, was I able to select the right passage? Was I able to select the right verbal ability का question? And if I missed, why did I miss? What was the reason? Okay, अच्छा यार, ये चीज मैंने शायद नहीं कंसिडर की। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन की स्टेम देख लूंगा, हो सकता है कि कई बार स्टेम से आइडिया लग जाए, है ना। ओके, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द वीडियो दैट आई डिस्कस वेयर आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन सिलेक्शन इन अ पैसेज, राइट। सिट एंड थिंक द लॉजिक, एक्सप्लेन एंड लेट इट सिंक इन। भाई आप
जब एनालिसिस करोगे, देखो मेरे पास 24 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने सही किए, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए। कुछ क्वेश्चंस जो गलत हुए उनमें से कुछ क्वेश्चंस इतने टफ थे कि मुझे पता है कि ये एक्चुअल एग्जाम में भी मेरे से नहीं होने, उनको साइड में कर दो। देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस दैट वर ईदर इजी और मीडियम, बट दे वर डुएबल, ठीक है। और मेरे को पता है कि यार ये डुएबल क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन ना मैं नहीं कर पाया। अब उन क्वेश्चंस पे खास करके मुझे रिफ्लेक्ट करना है कि यार मैंने क्या नहीं कंसिडर किया। अच्छा, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। ओके यार, ये वर्ड मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि इसका मीनिंग ये होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं इस वर्ड को ध्यान रखूंगा। अच्छा, ये जो सेंटेंस था उसका मीनिंग शायद ये था और मैंने ये समझ लिया। Okay, if there is something important, you can also note it down in the booklet that you have made. Okay, how would you understand the logic, guys? You would understand the logic from the explanation given. ये मैंने आपको last time भी बोला था। जब हम किसी पैसेज को करते हैं तो पैसेज को करते टाइम मेरे पास उस पैसेज के कंटेक्स्ट में एक अंडरस्टैंडिंग या एक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होना चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके उस चीज का एक्सप्लेनेशन मैं खुद बनाते बैठूं, राइट? ओके, सो whatever passage you are selecting, select a passage that has either a video solution or at least a written solution, ठीक है? क्योंकि वीडियो और रिटन अगर दोनों मिसिंग है तो भाई फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है, कोई मतलब नहीं है। ओके, एंड ऑब्वियसली द पैसेज सिलेक्शन शुड बी करेक्ट। एज आई ऑलवेज से, 2 पैसेजेस शुड बी सो डुएबल फॉर यू कि आपको पता हो कि भाई ये 24 मिनट्स में ये 2 पैसेज तो मैंने करने ही करने थे, ठीक है? और अगर गलती होती है तो अपने आप से पूछो कि वो कौन से 2 पैसेज थे जो शायद मैं मिस कर गया, राइट? एंड देन देयर इज दिस वन पैसेज दैट इज द थर्ड पैसेज, सो इन टोटल आई एम एबल टू मैनेज 3 पैसेजेस। Okay, 2 passages मेरा bare minimum target है, 1 passage is something that I want to find out because I'm like already targeting 95 plus sort of score, right? So वो चीज आपको थोड़ा सा वहां देखनी है। Okay, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके मॉक्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में सोचने का पैटर्न होता है। जब आप किसी और का एनालिसिस देखते हो, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो रिटन सॉल्यूशन हो, देन दोस थिंग्स क्लिक एंड देन यू रियलाइज कि हाँ यार ये चीज मैंने मिस आउट कर दी, शायद ये ऐसे थी। ओके, दैट इज व्हाट दिस एनालिसिस इज ऑल अबाउट, राइट? ओके, सो नाउ गाइज, आई वुड बी प्लानिंग a live on some of the things that you need to keep in mind as far as your verbal part is concerned, ठीक है? तो एक स्ट्रैटेजी सेशन की हम लोग बात करेंगे, तो वो अभी प्लान हम करेंगे। तो उसके लिए अगर कोई डाउट्स हैं जो आप चाहते हो कि भाई मैं एड्रेस करूं, तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स। व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स। ओके, आई वुड लाइक टू टेक दोस डाउट्स in that session. Okay, now finally let me talk about the booster course. Okay, so what is this VRC booster course? Let me give you some sense as to how you can look at it and if it's useful for you. Okay, so guys, जो पहली चीज हमने बात की थी कि भाई आपके पास हर वीक का एक कंटेंट होना चाहिए, और मैं अगर एक आइडिया दूं आपको तो यू नीड एटलीस्ट 15 passages sort of every week, right? So in this booster course guys, when you join, okay, you get a ready-made 70 passages, ठीक है? तो जैसे आप जाते हो डैशबोर्ड पे आपको 70 RCs विद वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो 70 RCs हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तो मतलब आप हर हफ्ते 15 RCs का टारगेट ले सकते हो। सीक्वेंस है 1 to 15, then you have 16 to 30 and like that. You can actually follow that sequence, right? So that is something that you can do. Then you have रेडीमेड योर VA क्वेश्चंस। ओके, टॉपिक टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट आप पिक करो। आपने वहां से पैराजिम्बल्स का टेस्ट पिक किया या पैरासमरी का टेस्ट किया, नो दिस इज ऑन द डैशबोर्ड, इट्स ऑलरेडी देयर, you just have to do it, you just have to then look for the explanation, right? All the passages they come with video explanation, so that's a fantastic thing. Then you have the live sessions, guys. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कोर्स जो है अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल लूँ इंग्लिश में वर्बल के अंदर तो क्या मेरे लिए सूटेबल है? बिल्कुल सूटेबल है, बिकॉज जो आपके डैशबोर्ड पे जो सेशंस हैं दे आर लाइक नॉर्मल, इजी टू मीडियम, okay, and then the interactive sessions would be medium to difficult, ठीक है? Okay, so this is the combination, so you can always build up your base from what you have on the dashboard. Okay, practice some passages from there and then you can obviously attend the interactive session which is the live session. Then we have the past year CAT papers, तो past year CAT papers का एक क्वेश्चन रहता है, तो past year CAT papers के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। and then obviously you have the topic test,
टॉपिक टेस्ट का बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपके पैरा समरी के, पैरा जिम्बल्स के, पैरा कंप्लीशन के, ऑल दोस टॉपिक टेस्ट आर देयर, यू कैन प्रैक्टिस टॉपिक टेस्ट इन टोटल. You have 1000 plus VRC questions, which is I think a very good number to practice before your actual CAT exam, right? So all in all, we can say that it's a complete course. So basically it will take care of whatever requirements you have as far as your verbal section goes. So अभी अगर आप करते हो तो इसमें 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. So you can apply this code booster, and once you apply this code booster you get a 20% discount. So then in that case it would cost you 3600 rupees. So 100 टॉप जो पहले जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए है ये कोड. तो अभी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस डिस्काउंट, राइट? ओके, सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर.